Hello everyone, we are back with the one more lecture of three dimensional geometry. हम लोग ने लास्ट वीक में मतलब आई गेस इन द लास्ट वीक ऑफ मे हम लोग ने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट किया था. आई हैड गिवन यू 3 to 4 न्यूमेरिकल्स विच आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. Today we'll be continuing with more numericals which can be either asked in theory papers as well as in your CET books. So now the question starts with find the direction cosines of a line which is passing through 2 points that is A and B. See अगर कोई भी वेक्टर का कोई भी लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो the first step is you have to find the direction ratios of that line. So now I'll start by saying let A, B, C are the direction ratios of the vector या फिर of the line AB bar. Now how do we find the direction ratios? A is equal to the difference of x, B is equal to the difference of y, C is equal to the difference of z. मतलब ABC is x2 minus x1, तो x2 minus x1, तो आपने अगर -2 -1 को सब्सट्रैक्ट किया तो यू गेट द आंसर एज -1. y2 minus y1, 4 minus 1 is 3, z2 minus z1, 3 minus 2 is 1. समझ में आ गया. पहले डायरेक्शन रेशियोज यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज ए बी सी. नाउ आई विल से लेट एल एम एन आर द डीसीज ऑफ द वेक्टर ए बी बार. तो अभी डायरेक्शन कोसाइंस का क्या फॉर्मूला है? L इज इक्वल टू A अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. M इज इक्वल टू, आप यहां पे प्लस माइनस लिख सकते हो इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट. M इज इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इज इक्वल टू plus minus c upon the root of a square plus b square plus c square. So now if you can see all the three functions, all the three cosines have a common square root, that is root of a square plus b square plus c square. तो यहां पे आप डायरेक्टली वो फंक्शन पहले डिराइव कर लो. ये तीनों का स्क्वायर आपको ऐड करना है एंड इसको रूट में रखना है. तो दिस इज व्हाट यू हैव. -1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इक्वल्स टू 11. डिनोमिनेटर के तीनों फंक्शन सेम होने की वजह से हम लोग ने वो पहले डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया. नाउ यू कैन जस्ट मेंशन देयरफॉर L इज इक्वल टू A अपॉन द रूट, तो इट इज -1 अपॉन द रूट. M इज इक्वल टू B अपॉन रूट 11 एंड N इज इक्वल टू C अपॉन root 11, and these three numbers give you the direction cosines of the line which is passing through 2 points, that is A and B. मान लो अगर यहां पे आपको डायरेक्शन एंगल्स पूछे गए तो यू कैन से वी नो दैट L मतलब cos अल्फा, तो cos अल्फा is -1 by root 11 and hence you can mention alpha is cos inverse of -1 upon root 11. बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग को -1 अपॉन रूट 11 का कॉस इनवर्स नहीं कैलकुलेट करने आता, तो आप ये जो एंगल है, ये जो नंबर है वो वैसे ही रख सकते हो. इन केस अगर कॉस इनवर्स का एक नंबर जो आपको फेमिलियर है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 आया, तो आप यहां पे वो एंगुलर फॉर्म लिख सकते हो. कॉस इनवर्स हाफ is equal to 60 degree and hence alpha is equal to 60 degrees. And if you don't know the number, you can keep it as it is. But यहां पे angles is not asked. Your numerical is up to the direction cosines of the vector of the line. So आपको ये numerical सिर्फ इतना ही solve करना है. Simple. Maybe it is a 2 marks numerical और बहुत बार ये 3 marks के syllabus में भी पूछा जाएगा. Getting it? Question number 2 for today. These kind of questions are generally asked in the CET papers. न्यूमेरिकल सेक्शन theoretically ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इन केस अगर पूछे भी गए तो इट इज वेरी वेरी सिंपल. करना क्या है देखो,
I'll convert this numerical from CET to theory, saying that show that the vectors AB bar and CD bar are perpendicular to each other, where the vertex A is equal to 3, 4, minus 2, vertex B is equal to 1, minus 1, 2, vertex C is equal to 0, 3, 2, and vertex D is equal to 3, 5, 6. Now if you have studied the part of three-dimensional geometry, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, अगर हमें वो प्रूव करना है, तो व्हाट इज द मेथड? द मेथड इज फर्स्ट assume that A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the direction ratios of AB bar and CD bar respectively. Three-dimensional geometry का पूरा chapter is dependent on the direction ratios. तो पहले using the vertices you are supposed to find the DRs. So I'll say A1, B1, C1. मैंने प्रीवियसली आपको फॉर्मूला सिखाया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. करो कैलकुलेशन. 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 2 minus of minus 2 gives me 4. Similarly, A2, B2, C2, x2 minus x1, 3 minus 0, y2 minus y1, 5 minus 3, z2 minus z1, 6 minus 2 is equal to 4. Abhi, what is the relation between the direction ratios of the vector when they are perpendicular to each other? तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी. You have to calculate this factor A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. This is nothing but the dot product of the vectors AB bar and CD bar. So how do you get the answer? Minus 2 into 3 plus minus 5 into 2 plus 4 into 4 minus 6 minus 10 plus 16. तो minus 6 minus 10 मतलब minus 16 and plus 16 is 0. And this is nothing but the condition of perpendicular vectors. हम लोग ने properties of direction ratios में ये property already mention किया है. तो now you can say therefore AB bar is perpendicular to CD bar. अगर आपने एंगल का फॉर्मूला स्टडी किया है, cos theta is equal to, तो दिस इज योर न्यूमरेटर, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर. एंड न्यूमरेटर अगर cos फंक्शन का 0 है, तो cos थीटा इज अल्टीमेटली 0. एंड cos थीटा इज 0 फॉर विच एंगल? 90 डिग्री. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. AB बार एंड CD बार दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मेनी अ टाइम्स ये न्यूमेरिकल CET में कैसा आएगा? They'll give you AB bar and CD bar along with these 4 vertices, and in option they'll say AB is parallel to CD, AB is perpendicular to CD, the angle between AB and CD is so and so. So ऐसे जो options है वो आपको manipulate करके आपको ये numerical solve करना है. तो CET में पहले what you are supposed to do is, the only thing you can check is whether they are perpendicular or parallel. पहले ये 2 कंडीशंस चेक करो एंड लेटर यू कैन चेक द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. क्योंकि जनरली सीईटी में क्वेश्चंस आपको मिनिमम टाइम में सॉल्व करने हैं एंड मिनिमम टाइम में परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन आप वेरीफाई कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. दिस क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एज वेल एज सीईटी न्यूमेरिकल. ये थ्योरी में भी बहुत बार पूछा गया है. न्यूमेरिकल सेक्शन सीईटी का भी ये बहुत ही फेवरेट न्यूमेरिकल है. द क्वेश्चन इज, यू आर सपोज टू फाइंड एक्स. एक्स इज अ कांस्टेंट. इफ ट्राइंगल ABC is right angled triangle where vertex A is equal to 4 2 3,
वर्टेक्स बी इज इक्वल टू 318, वर्टेक्स सी इज इक्वल टू x माइनस 12 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो ट्राइंगल एबीसी है दैट इज राइट एंगल्ड एट द वर्टेक्स ए। तो अभी ये न्यूमेरिकल डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में कैसे सॉल्व होगा? तो ये न्यूमेरिकल मैंने जानबूझ के अपना जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है उसके बाद ही लिया है, बिकॉज द लॉजिक बिहाइंड दीज टू न्यूमेरिकल इज सेम। यहां पे मुझे प्रूव करना था परपेंडिकुलर, तो आई प्रूव्ड दिस इक्वल टू 0। यहां पे मुझे ऑलरेडी दिया है इट इज अ राइट एंगल्ड, मतलब कोई भी दो साइड्स जो है उनके डायरेक्शन रेशियो का जो ये रिलेशन है वो ऑलरेडी 0 है। इट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो नाउ विच वेक्टर्स आर यू सपोज टू टेक? यू कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल। यहां पे लिखो B, vertex A is at 90, this is C. So you can see vector BA bar and vector AC bar, they are perpendicular. So now you can start your numerical by saying let A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the direction ratios of the vector BA bar and vector AC bar respectively. तो अभी how do you find the direction ratios? A1, B1, C1. BA bar मतलब A bar minus B bar. तो now this is x2, y2, z2. This is x1, y1, z1. तो 4 minus 3, 1. 2 minus 1, 1. 3 minus 8, minus 5. अगर मैंने यहां पे ए बी बार लिखा रहता तो इट वुड बी बी माइनस ए, बिकॉज आई हैव रिटन बी ए बार, इट इज ए माइनस बी। नाउ इट इज ए सी बार, तो ए सी बार मतलब क्या? सी माइनस ए, तो सी माइनस ए, तो यहां पे आई विल राइट A2 is equal to x minus 4, B2 is equal to minus 1 minus 2 which is minus 3 and C2 is equal to 2 minus 3 which is minus 1. But now what we can see, these two vectors are perpendicular. तो यहां पे you can say since BA bar is perpendicular to AC bar, therefore property लिख दो A1 A2, B1 B2, C1 C2 is equal to 0. And now do the calculations. A1 A2, 1 into x minus 4 is x minus 4. B1 B2, 1 into minus 3 is minus 3. C1 C2, minus 5 into minus 1 is plus 5 and this goes equal to 0. अभी देखो minus 4 minus 3 मतलब minus 7 and minus 7 plus 5 is minus 2 equal to 0 and hence x is equal to 2. तो जिन जिन लोगों ने मेरे पास से MCQ का बुक लेके गए हो आप, तो उसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स विथ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू दोज न्यूमेरिकल्स। एंड न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ही सिंपल है, बेसिक न्यूमेरिकल सेक्शन है। आप अगर वो सेक्शन को एक बार भी अच्छे से सॉल्व करोगे तो दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी 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 सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड, 3 to 4 more numericals which are based on the same logic of perpendicular, parallel, angle, direction ratios, direction cosines। ये पूरा चैप्टर आपको यही फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो पहले आप थ्योरी स्टडी करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज करो एंड देन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। Question number 4, a very 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 important numerical for CET, JEE as well as board papers। ये न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट पेपर में हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वर्क दिखाना है। आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पार्ट। If a line drawn from a point A, the coordinates are given to you, is perpendicular to the line joining the points, मतलब from A हम लोग ने PQ बार मतलब लाइन PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नाउ बेसिकली व्हाट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर?
तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, a point A is given to me 1 to 1 and there is a line segment which is passing through 2 points, that is it is P comma Q. The coordinates of P are given 1 4 6, the coordinates of Q are given 5 4 4. Now from this point I have to drop a perpendicular. तो मैंने यहां पे ये perpendicular ड्रॉप की. I'll just give the name of the perpendicular as AM. तो ये जो point M है, this point is nothing but the foot of the perpendicular. Foot मतलब base, और ये जो base है उसके मुझे क्या पूछे गए हैं? I have to calculate the coordinates. Now ये न्यूमेरिकल आप theoretical section में या फिर CET section में कैसे solve करोगे? तो उसके लिए you have to make a simple assumption. And the assumption is, let the point M divides the segment PQ internally in the ratio of lambda as to 1. What did I say just now? Let M divides PQ internally in the ratio of lambda as to 1. सी सेक्शन फॉर्मूला में जब कभी भी आपको एक पॉइंट, कोई भी एक सेगमेंट को जो डिवाइड करने वाला है उसका अगर रेशो नहीं पता है तो आप वो रेशो को लैम्डा एस टू 1 के फॉर्म में इंटरनली, बाय डिफॉल्ट इंटरनली अज्यूम कर सकते हो. तो यू विल से एवरी टाइम ये इंटरनली रहेगा क्या? तो नो. तो हाउ डू वी डिसाइड वेदर इट विल बी इंटरनल और एक्सटर्नल? तो अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने ये सेक्शन फॉर्मूला में, मैंने ये पार्ट वेक्टर्स में आपको बताया है, लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो डिवीजन रिमेन्स इंटरनल, एंड इफ लैम्डा इज नेगेटिव तो डिवीजन विल बी ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल. बट जब आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हो तो यू हैव टू अज्यूम दैट नंबर एज एन इंटरनल डिवीजन पॉइंट. तो मैंने ये इंटरनल डिवीजन को क्यों कंसिडर किया है? तो मुझे यहां पे, अगर यहां पे 3 वेरिएबल्स निकालने हैं x, y, z, तो दैट कैलकुलेशन इज मच मोर डिफिकल्ट. सो व्हाट डिड आई डू इज, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल दीज 3 वेरिएबल्स इन अ सिंगल वेरिएबल लैम्डा बाय यूजिंग द इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला. तो इफ यू रिमेंबर द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, द फॉर्मूला वॉज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो 5 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. समझ में आ रहा है? सिमिलरली y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. बट यहां पे अगर आप देखो तो न्यूमरेटर में अगर मैंने 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आई गेट अ फैक्टर लैम्डा प्लस 1, which is also available in the denominator. So this equation, the number is automatically equal to 4. मतलब मुझे क्या मिला? The foot of the perpendicular का y coordinate is directly equal to 4 and z is equal to mz2 plus nz1 divided by m plus n. तो अगर मुझे x और z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y तो डायरेक्टली मिल गया, तो मैंने सिर्फ अगर लैम्डा निकाल लिया तो मुझे ये न्यूमेरिकल मेरा खत्म हो गया. तो अभी लैम्डा कैसे निकालेंगे? इसके लिए यू हैव टू अगेन यूज द सेम लॉजिक कि अगर AM इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड A1, B1, C1 एंड A2, B2, C2 are the direction ratios of AM and PQ, तो ये दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उसका जो समेशन है वो कितना आएगा? 0. हम लोग ने जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया उसके वाले पहले न्यूमेरिकल में किया, सेम लॉजिक हम लोग यहां पे यूज करेंगे. तो पहले हाउ डू आई कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM, A1, B1, C1? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो इट इज M
माइनस ए. बट व्हाट इज m का XYZ? यहां पे हम लोग ने लिखा है 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो यहां पे आई विल से A1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस A का x कोऑर्डिनेट विच इज 1. अभी आपको यह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. उसके लिए लैम्डा प्लस 1 जो है यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. तो लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 कितना मिलेगा? 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड 4 लैम्डा, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. समझ में आ गया? ये यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट दिस. सिमिलरली B1 निकालना है, तो इसका y कोऑर्डिनेट मतलब 4 और इसका y कोऑर्डिनेट मतलब 2. तो यहां पे आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. इसका z कोऑर्डिनेट माइनस a का z कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो इट इज 1. तो अभी ये सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई. सो यू गेट 4 माइनस 3 माइनस 1 3 लैम्डा 6 माइनस 1 इज प्लस 5 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1. समझ में आ गया? नाउ A2 B2 C2. A2 B2 C2 मतलब PQ के डायरेक्शन रेशियोज. 5 माइनस 1 4 माइनस 4 4 माइनस 6. तो अगर आप ये कैलकुलेशन करो तो 5 माइनस 1 गिव्स मी 4, 4 माइनस 4 गिव्स मी 0, and 4 minus 6 gives me minus 2. Now, AM is perpendicular to PQ. Therefore, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. तो अभी A1 मल्टीप्लाइड बाय A2, तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 16 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. आई विल जस्ट राइट इट ऑन द सेकेंड पेज. 16 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. अगर आप B1 मल्टीप्लाइड बाय B2 करते हो तो इट इज एक्चुअली 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज 0, एंड C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 करोगे तो माइनस 2 इंटू दिस ब्रैकेट अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो यहां पे आई विल राइट प्लस 0 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेके यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो यहां बचा 16 लैम्डा, माइनस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 लैम्डा माइनस 10 इज 0. नाउ 16 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा is 10 lambda, which is equal to 10, and hence lambda is equal to 1. Have you understood? तो ये लैम्डा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल गई, मतलब जो डिवीजन है वो इंटरनल डिवीजन है, एंड सिंस लैम्डा इज 1 तो बेसिकली ये रेशो 1:1 हो गया. मतलब ये पॉइंट M जो है वो PQ का क्या होने वाला है? इट विल बी द मिड पॉइंट. बट हमें यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. आप यहां पे डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड z, एंड y इज ऑलरेडी नोन टू अस. सो नाउ यहां पे आई विल से देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो 6 प्लस 1 आई एम सॉरी 5 plus 1 is 6, 6 upon 2 is 3, y was already 4, and z is equal to 3 into lambda plus 5 upon lambda plus 1. So it is 3 plus 5, 8, 8 upon 2 is sorry, this is I guess 6. It is 4k plus 6. 4 lambda plus 6 upon lambda plus 1. So it is 4 plus 6 which is 10, and 10 upon 2 is equal to 5. तो यहां पे you get
एम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3, 4 and 5. And you can check the midpoint formula का form. See 1 plus 5 6 upon 2 is 3. 4 plus 4 8 upon 2 is 4 and 6 plus 4 10 upon 2 is 5. मतलब हम लोग ने जो यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया है इट इज राइट. क्वेश्चन नंबर 5, अ वेरी सिंपल 2 मार्क्स न्यूमेरिकल. बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है बट ये जो स्पेसिफिक मैं यहाँ पे ले रहा हूं इट इज आस्क्ड इन द पेपर ऑफ March 2014. The numerical is find the acute angle between the two lines whose direction ratios are given by 5, 12, minus 13 and 3, minus 4, 5. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. कोई भी दो लाइंस का कोई भी दो वेक्टर के अगर आपको डीआरस दिए हैं तो आपको उन दोनों वेक्टर्स में उन दोनों लाइंस में जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू निकालनी है. नाउ आई स्टार्ट माय न्यूमेरिकल बाय असाइनिंग द वैल्यूज फर्स्ट. A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are the direction ratios of the given lines. लाइन का यहां पे कुछ नाम नहीं दिया है ए बी पी क्यू सी डी, तो आप डायरेक्टली असाइनमेंट कर सकते हो. अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने जो प्रॉपर्टी सेक्शन में लिखा था, इट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर. And since they have asked me to find acute angle, यहां पे I'll give the modulus. क्योंकि acute angle है तो आपका एंगल का जो फंक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मॉड्यूलस. नाउ सब्स्टिट्यूशन A1 A2 डायरेक्टली लिख दो, B1 B2 आई होप यू नो द टेबल्स, C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में तीनों का स्क्वायर लिखना है तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169. दिस इज मल्टीप्लाइड विथ ये तीनों का स्क्वायर 9, 16, 25 एंड दिस इज इन दी मॉड्यूलस. अभी करो कैलकुलेशन. 15 minus 65. 15 minus 65 is minus 50, right? And minus 50 minus 48 gives me minus 98. 15 minus 65 is minus 50 and minus 50 minus 48 is minus 98. Denominators देखो. Yes, 169 plus 169. मतलब बेसिकली रूट ऑफ 169 प्लस 169 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 169. सो यहां पे कैन आई से दिस इज 13 रूट 2. 169 प्लस 169 इज 2 इंटू 169, तो 169 का रूट आ गया 13 एंड रूट 2. 25 प्लस 25 मतलब इट इज 2 इंटू 25, सो मतलब ये हो गया 25 का रूट 5 एंड इंटू 2, सो ये आ गया 5 रूट 2. नाउ रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 एंड 98 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट इज 49. तो बेसिकली आई गेट 49, 13 5 65. बट दिस इज कॉस थीटा. ये माइनस साइन मैंने हटा दी क्योंकि यहां पे मॉड्यूलस है. बट मुझे क्वेश्चन पूछा है फाइंड दी एंगल. आपको यहां पे एंगल निकालना है तो ड्यूरिंग एंगल यू जस्ट हैव टू राइट कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 49/65. सिंपल है. 2 मार्क के लिए आपको ये न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड के सेक्शंस में पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. सिमिलरली आपको एक असाइनमेंट के लिए आई गिव यू अ न्यूमेरिकल. आप ये न्यूमेरिकल आप घर पे ट्राई कर सकते हो. द क्वेश्चन इज एंगल ही निकालना है.
find the acute angle between the lines having DRs as, I'll give you the question, 3, -2, 4 and 1, 3, -2. Solution I'll give it to you, ताकि आप जब घर पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तब आप वेरीफाई कर सकते हो. You should get theta is equal to cos inverse of 11, the numerator is 11, divided by the square root of 406. Similarly, based on the same numerical, आपको और एक क्वेश्चन I'll give you, जहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है. क्या क्वेश्चन है? Find the angle between AB बार एंड CD बार. यहां पे आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, वेर दे गिव यू दी वर्टाइसेस. A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 6 -5, C इज इक्वल टू 3 -2 -2 एंड D इज इक्वल टू 2 1 -3. तो पहले एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे. तो यहां पे आई जस्ट गिव यू दी हिंट कि करना क्या है. फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार एंड CD बार, B - A, D - C. तो AB बार के डायरेक्शन रेशियोज ले लो, A1 B1 C1, इसके ले लो A2 B2 C2. यूज द सेम फॉर्मूला जो आप यहां पे और प्रीवियसली यूज कर चुके हो एंड यू विल गेट द आंसर. Just to verify, I'll give you the answer for this numerical. Cos inverse bracket में 9 upon the square root of 231. So guys, for today these 7 numericals are more than enough. आप इतना करो. ये चैप्टर अभी मैं कल कंटिन्यू करूंगा. Few more numericals are left from this chapter. वो कंप्लीट करके I'll give you some extra points from the book of R.D. Sharma. See, हमारे नए सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स में जो न्यूमेरिकल सेक्शन दिया है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है. ये न्यूमेरिकल्स आपको हमारे नए टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे. ये मैंने स्पेशली फ्रॉम दी ओल्ड सिलेबस निकाला है सो दैट ये न्यूमेरिकल्स इन केस अगर पेपर में पूछे गए तो यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर. Few more numericals, few more theoretical part of this chapter is still pending. तो ये Wednesday और Thursday तक mostly खत्म हो जाएगा and then we'll complete the chapter of mathematical logic.